दम आया आवाज में। हाँ जी। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट सर मैं कहता रहता हूँ इस फिल्म के लिए कि देश सो रहा है, लेकिन यहाँ के बोलना अच्छा लग रहा है कि देश सो रहा है लेकिन स्टूडेंट जाग रहे हैं। Sir, before we move on to the whole, whatever we want to talk to you, we want to know a lot about the movie because we saw the trailer. I saw it on YouTube and I found it very interesting. So I think we need to see the trailer one more time. Let's see the trailer and after that we'll start talking about it. Yeah? Can we have the trailer of Madari, please? I look for the stories which hits me, which has some kind of resonance. This film particularly was based on a real incident. Something happened and we were discussing about that and we were just thinking about the accountability of the system. कभी भी कुछ होता है तो आपको अखबार में पढ़ने को मिलता है, न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है और किसी भी डिजास्टर से लाखों करोड़ों लोग की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, लेकिन कौन जिम्मेदार होता है हमें पता नहीं होता। तो ये फिल्म एक थ्रिलर है जी, थ्रिलर है, बट इसकी कई बार क्या होता है ट्रेलर में आदमी जो फिल्म का जो बहुत अच्छा होता है सब डाल देते हैं, वो बचा कुछ नहीं रहता अंदर। इसमें सिर्फ ये थ्रिलर और इसका रिवेंज एंगल है, लेकिन इसके अंदर बाप बेटे का एक लव स्टोरी है, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी है। एंड आई कैन एश्योर यू जिनके बच्चे हैं छोटे और ये फैमिली के साथ देखने वाली फिल्म है, ये फिल्म देखने के बाद बच्चा बाप से लिपट के सोएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। Out also. Yeah, because the film got leaked long back. 10 दिन पहले leak हो गई थी, and they were in panic and they wanted to come earlier. And we already shifted our date. Now it was difficult for us to shift. But then it's better not to eat into each other's business. So we shifted the date, and piracy is something government should take it very seriously. It's the greatest threat to our industry. एक तो हॉलीवुड है, वो अपने आप में बहुत बड़ी थ्रेट है, जो सारे बच्चे जो हैं सब ज़्यादातर जो हैं हॉलीवुड की फिल्में देख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई it should be taken very seriously. Nishi and we have been working together for a long time. When he was in television, I did something for him, and then I worked with him in Mumbai Meri Jaan. But after Mumbai Meri Jaan, Nishikant changed his style of making. After that he made Force, then he made Drishyam, then he made another film as well. So now he's trying to make films for a larger audience. He made a Marathi film as well, which was also Le Bhari. So he's making a film which is for the larger audience. So that's how he has changed the gear. And he's a fantastic craftsman, and you'll see how he has played the thriller and emotional part, which is very strange combination. And you heard the song for the first time. So I was involved in the song, and I requested Vishal Saab that it should be composed in a way that should relate to youth. It should become a kind of voice of youth. They have angst, they have so many questions. So the song is actually it's like a party song, but the lyrics are fantastic. You must hear the lyrics, and it's asking many questions, reflecting about our country. So we have something planned also that we will want you to see after a bit. Yeah. In the meantime, can we have a few questions? Yeah, there we have a question. Why the name Madari for your movie? Madari, we were struggling with the title, and I chose a title called Dangal. And but our director Nishikant, he had some issue with it. He said Dangal in Maharashtra has a different connotation. So he was not okay with it. So I had to, then again think. And one night I decided that जो भी हो जाए मैं आज रात को टाइटल लेके ही छोड़ूंगा। तो रात को मैंने 8-10 टाइटल्स मैंने सोचे, and then Madari, because we basically in system sometimes what happens is system और आम आदमी के साथ जो है जमूरा और मदारी का खेल चलता रहता है, वो अपने इशारों पे नचाते रहते हैं। तो कौन कब जमूरा बनता है, कौन कब मदारी बनता है, ये प्ले है इसमें। Yes, question from back. सर आपसे जानना चाहूँगा स्टूडेंट्स के लिए फिल्म कितनी इम्पोर्टेंट होगी? स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई है यार हमने तो, इसीलिए मैं बार कॉलेज जा रहा हूँ। मैं कभी इतने कॉलेजेस नहीं गया, अब तो जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी नहीं जाता था कॉलेज, अभी मैं ज़्यादा जा रहा हूँ कॉलेज। अच्छा, जब कॉलेज में आप थे और कभी कोई फेस्टिवल आता था तो उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हो रहे थे? हम कॉलेज में होते ही नहीं थे तो कैसे एक्साइटेड? हम सिर्फ फेस्टिवल के दिन अपना मुंह दिखाने, मतलब इधर उधर ताकने, लड़कियां ढूंढने, हमें कोई भाव नहीं मिलता था, कोई हमें देखता नहीं था।
लेकिन वही टाइम होता था जब आप जाते थे फेस्टिवल्स वगैरह में, डिबेट्स वगैरह होती थी एंड हमें लगता था ये कौन प्राणी है जो डिबेट कर रहे हैं, हमें कुछ अंदाजा भी नहीं था उसका। सर अभी आप करियर के इतने ऊंचे मुकाम पर आप पहुंच गए, अभी कभी कभी आपको लगता है कि कॉलेज के दिन वापस आ जाए? अरे यार ये इससे अच्छा वक्त होता नहीं है। ये तो आदमी इस वक्त पैदा हो रहा होता है, इस वक्त फॉर्म हो रहा होता है, इस वक्त की एनर्जी जो है वो कभी नहीं आएगी लौट के। सो जितना आपको इस एज में एक्सप्लोर करना है, ये एज फिर नहीं आएगी। प्लीज हैव ए ब्लास्ट, जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, जितना जान सकते हैं। अभी क्या होता है कि बार प्रेशर्स होते हैं हमारे ऊपर कि आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे ये बनना है, एंड देन विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग दैट इज इट योर कॉलिंग और नॉट, आप सिर्फ क्योंकि सिक्योर होने के लिए आप वो लाइन चूज कर लेते हो, एंड देन यू नो 10 साल बाद 15 साल बाद मे बी यू हैव एस्टैब्लिश योरसेल्फ, बट यू हैव अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ यू नो एम्प्टीनेस कि यार आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू, आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई वांटेड टू डू। सो दिस इज द टाइम टू चूज, दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर एंड वेट, यू नो देयर इज नो हरी। Just explore yourself and find the inner calling and then dive deep, take a plunge and घुस जाओ अंदर। Yes. इरफान सर, आपने लालू यादव के साथ प्रमोशन किया फिल्म का, क्या ऐसा रीजन रहा? आपने सिस्टम के खिलाफ पिक्चर बनाई है, तो लालू यादव साहब कितने रिलेवेंट लगे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए? मैं और कई लोगों को मैंने न्योता भेजा और मैं जानना चाहता था एक आम आदमी की तरह, मैं मेरे सवाल है बहुत सारे, जैसे लोगों के सवाल हैं, हम वो सवाल पूछना चाहते हैं, तो किससे पूछें? बाबा रामदेव से तो पूछ नहीं सकते, उनको ही भेजा मैंने न्योता। मैंने कहा कि आपसे बात करनी है एक आम आदमी की तरह, मैं आ सकता हूँ क्यों, मुझे फिल्म ही प्रमोट करनी है अपनी, और सवाल भी पूछूंगा कि हमारी फिल्म जो है इसी बारे में है। तो मैं नाचने गाने नहीं आ रहा हूँ, हम सिर्फ सवाल करने आ रहा हूँ। मैंने मोदी जी को भी भेजा, मैंने केजरीवाल को ही भेजा इन्विटेशन, तो लालू जी का आ गया, उन्होंने कहा हाँ ईद का मौका है, उन्होंने अपना देखा होगा कुछ, पता नहीं जो भी क्या बातचीत का अंश बताएं जो बातचीत हुई आपसे उनसे? वो यार पूरा है फेसबुक पे, अभी सारी कैसे बताऊँ आपको, देख लीजिए आप, बहुत सारी उनसे बात हुई सिस्टम के बारे में। हमने उनके लिए 2 आइटम सॉन्ग भी रखे, वो वहीं एकदम से ध्यान में आ गए। तो एक था कि ये पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है, वो उसका राजेश खन्ना की फिल्म का। एक और है गाना, दूसरा कौन सा था याद दिलाना? वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया, बंदा ही सीधा साधा। Yes. So how was it different working in Hollywood movies from Bollywood? It is very different here because that industry is making films for the world audience. So in their film, the behavior or the character exposition, character build-up is much more credible and much more detailed. हमारे यहाँ कई बार क्या होता है, we take a subject, but वो subject जो है launching pad होता है हीरो को हवा में उड़ने के लिए, उसके बाद उस सब्जेक्ट से कोई लेना देना होता नहीं है। आप देखें किसी कमर्शियल फिल्म में सडनली बांग्लादेश से कितने लोग निकले और कितने मर गए और ये सारी बातें हो रही है, उसके बाद फिर कहीं कहीं चली जाती है स्टोरी। तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट को एक्सप्लोर नहीं करते हैं। अभी टाइम दूसरा है, अभी के कुछ नए डायरेक्टर्स जो हैं, दे आर मेकिंग फिल्म्स which is trying to explore the subject, like you know नीरजा हो या अभी जो पंजाब की फिल्म थी उड़ता पंजाब, you know, और जो हमने भी कुछ ऐसी फिल्में बनाई हैं। तो now things are changing, but basically our Indian commercial cinema it doesn't bother about to explore the subject, but Hollywood cinema has been doing it for long. Yes. इरफान सर, आपका इस मूवी में लुक थोड़ा डिफरेंट है, आपने बाल बढ़ाए और आपकी दाढ़ी वाड़ी भी, तो उसके बारे में बताएंगे कि क्या लाइक लुक? हाँ, इसमें क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ट्रिकी, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट वही था, क्योंकि कभी बाल बढ़े हुए हैं, कभी छोटे हैं। अब हमारी फिल्मों के बजट इतने बड़े तो है नहीं कि यू नो आप आराम से शूटिंग करें, हम तो मारा मारी में गुरिल्ला वॉर टाइप शूटिंग करते हैं हम लोग। तो उसमें वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था एक्चुअली। और क्योंकि एक आदमी का, एक आम आदमी होते हुए देन उसके साथ क्राइसिस होता है, देन इसका जर्नी जो है उसमें उसका फिर जो है लुक चेंज है कई जगह। तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग पार्ट एक्चुअली टू मेंटेन दैट। मैंने एक फिल्म की थी पान सिंह तोमर, वो फिल्म बनने के बाद 1-1.5 साल वो वहाँ यूटीवी के अंदर स्टोरेज में आराम कर रही थी। तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। मैं कई लोगों को लेकर भी गया, यूटीवी से बात करवाई कि ये जो फिल्म है आपको अगर पसंद नहीं आ रही तो हमें दे दीजिए, जितना पैसा आपका खर्चा हुआ आप ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ बात करते हैं, करते हैं। आई वॉज फीलिंग वेरी हेल्पलेस दैट टाइम।
उस वक्त मुझे लगा कि जब भी मेरे में इतनी क्षमता हुई कि मेरा एटलीस्ट इतना कंट्रोल रहे कि मैंने अगर कुछ काम किया है तो वो लोगों को दिखा तो सकूं, उसका डिसाइड कर, उसके डिसीजन में मेरा कुछ तो मेरा हाथ हो। ऐसा ना हो कि कोई प्रोड्यूसर के लिए आपने काम किया, वो बोल रहा है कि मतलब डीवीडी पे रिलीज कर दूंगा, तो वो उस चीज़ से मैं बहुत डरा हुआ था। तो इसमें ऐसे हालात बने कि मैं हम प्रोड्यूसर बन सकते हैं, तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर बना। इरफान, कितना डिफिकल्ट रहा आपसे ये प्रोड्यूसर का सफर? मेरा एक्चुअली प्रोडक्शन का जो काम था वो सिर्फ इतना था कि टीम अरेंज करूँ मैं, बाकी पैसा वैसा कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा उससे मैं नहीं, वो अगर होगा तो मैं छोड़ दूंगा, फिर नहीं, वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ कि डायरेक्टर कौन होगा, राइटर कौन होगा, किस तरह का सेटअप होगा, इन सब क्रिएटिव डिसीजंस मैंने लिए थे, बाकी मेरा और कोई नहीं योगदान नहीं। No, not at all. No politician, no party. It's about all the parties, all the politicians and everybody. 125 करोड़। बॉम्बे में हुई, यहाँ हुई, अपना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जैसलमेर, पंजाब, 4-5 जगह पे ऐसे। Yes. सर, आप पान सिंह तोमर, यू हैव डन पान सिंह तोमर, और उसमें आप एक आर्मी से रिलेटेड उसमें थे पहले स्टार्टिंग में, तो इज देयर एनी प्लान कि नेक्स्ट आप कोई डिफेंस रिलेटेड मूवीज करोगे, कोई आर्मी ऑफिसर के, ऐसा कुछ? कहानी होगी तो ज़रूर करेंगे यार। आर्मी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हमने इंटेलिजेंस एजेंसी पे एक फिल्म की थी, डी-डे रॉ, जो हमारा एनालिसिस विंग है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। कभी अगर अच्छी सब मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। आर्मी इज ए फैसिनेटिंग सब्जेक्ट। अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जब आप टीनेजर थे किसी को करते थे, फिर वो बदल गया, फिर बाद में शुरू में हम दिलीप कुमार को करते थे, फिर मिठुन चक्रवर्ती को भी बहुत करते थे। मेरा फेस किसी ने बोल दिया था, गलतफहमी दिलाई थी मुझे, गलतफहमी करवाई थी कि मेरा फेस उससे मिलता है। मैं बार बार आईना देखता था, बार बार मेरा देखता था कहाँ से मिलता है, और गलतफहमी हो जाती है, टीनेजर हो जाती है। और फिर मेरे बाल जो है बिल्कुल ऐसे हार्ड कर्ली बाल थे, उसके सीधे बाल थे ऐसे सॉफ्ट। तो मैं बहुत कई बार जाता था बाबर्स के पास कि यार बाल थोड़े से सीधे कर दो, कैसे भी करके, तो कर तो देते थे। एक दिन ब्लो ड्रायर किया तो सीधे तो हो गए, लेकिन नेक्स्ट डे तक वो ऐसे कुछ हो जाते थे, और मैं बहुत परेशान होता था। नसीर साहब ने बहुत इन्फ्लुएंस किया, ब्रांडो है, फिलिप सेयवर हॉफमैन है, डेनियल लुइस है, लिस्ट लंबी है, महात्मा गांधी है, बहुत सारे लोग हैं। Sir, Abhi, when you're chilling in Hollywood, with all those, who do you admire in Hollywood right now? Like, I mean, since we all know that you have a lot of friends in Hollywood anyway. I think right now I've just done a film with Tom Hanks. And Yeah, I was going to ask you that. How was the experience, Outstanding experience. And you won't even believe what kind of person he is. He's such a nice, beautiful human being he is. He's so warm. And he doesn't have the insecurities which generally actor has. जो एक्टिंग की लाइन ऐसी है, इसमें कभी कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी नहीं होती है। आप 70-75 साल के हो जाएं तो भी आप स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, देखते रहते हैं कि अगली बार ऐसा तो नहीं मुझे कोई पहचानेगा नहीं। तो ये बड़ा डरा हुआ होता है एक्टर जो आदमी होता है। But something that you learned from, Tom Hanks, his graciousness, yes, and his ease, the way he acts, is like the way our folk actors are, जो बहुत ज़्यादा सोचते, मतलब बहुत ज़्यादा उनका क्राफ्ट दिखता नहीं है। उनको बोलो वो इमीडिएटली, कुछ भी बोलो इमीडिएटली उनके अंदर से निकाल देते। कुछ होते हैं इनबॉर्न एक्टर होते हैं, नेचुरल होता है उनमें। मुझे लगता है टॉम हैंक्स शायद उस तरह के एक्टर है। Okay. Anyway, so we'll move on.